Hello everyone, Neha ma'am here. So, how are you all? I hope you all are fine and fit, isn't it? Great. Today we are going to start our first chapter of value education, that is mercy. So, you all are requested to listen it carefully. At the end of this explanation part, I will provide you the PDF, and from that PDF you can see the meanings of the words and then you can write down in your book. Okay, so just now listen very carefully. So let's start now. Mercy means kindness shown by somebody. Whenever somebody shows kindness, then we call it mercy. Okay, so when we are merciful, we are kind or forgiving towards someone vulnerable. It means कभी भी हम merciful होते हैं किसी के लिए, it means we are kind. हम kind हैं, we are kind of forgiving towards some vulnerable. यानी कि vulnerable means अगर कोई भी vulnerable word mean weak and easy to hurt physically or emotionally. It means अगर आप किसी के लिए merciful हो रहे हैं, it means you have to be or you are kind to anyone, you are forgiving anyone, so you should forgive everything, that you should not hurt anyone. आपको किसी को चोट नहीं पहुंचानी है physically या emotionally. You should be kind, mercy in every way. It can be in equality. You should treat everyone as equal. You should do correct justice. You should be vengeance means you should not punish anyone or you should not harm anyone or you should not blame anyone while doing kindness or forgiving anyone. It means if you are merciful to anyone, it means you are kind and forgiving anyone. So you should not treat anyone unequal. You should do everything in a, you should do everything in a justice way. You should not punish or harm anyone. Okay, he asks not what person deserve but what one needs. Mercy is ultimately tied to compassion or empathy. Mercy is also known as, this is a synonym, compassion and empathy. Okay, without mercy the world would be harsh, impacting place. When we feel the grace given by God to us mercifully, we often find in ourselves a desire to give others the same gift. If there will be no mercy, अगर कोई mercy नहीं होगी तो then word will be harsh, extracting place, हर जगह क्या होगा, तबाही होगी, हार्श नेचर होगा. ठीक है, when we feel the grace given by God to us mercifully, अगर गॉड ने, भगवान ने हमें, अगर हम उसकी ग्रेस फील करेंगे कि जो ऊपर वाले ने हमें एक काइंड नेचर दिया है, उसने हम पे दया किया हमें यहाँ भेज के, ठीक है, ही ऑलवेज ब्लेस अस इन एवरी वे. इट मीन्स वी ऑफन फाइंड इन आवर सेल्फ अ डिज़ायर. तो हमारे अंदर भी एक डिज़ायर हमें मिलेगा दैट वी शुड गिव सेम थिंग टू अदर्स. जो गॉड ने हमें दिया, हमें ब्लेस की हैं, सेम वे हम ब्लेस करें दूसरों को. We should be also be merciful to others as we got the mercy, as God gives us mercy to us. Okay, kindness to God, do the kindness. Now we are going to start our chapter once upon a time. ठीक है, एक बार की बात है. Now the title of the story say live and let live. जियो और जीने दो. In this world, people kill poor and innocent animals to fulfill their greed and selfishness. इस दुनिया में लोग मारते हैं गरीब को एंड इनोसेंट एनिमल्स को. इनोसेंट मीन नॉट हैविंग डन रॉन्ग, जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया है. वाई? टू फुलफिल देयर ग्रीड. अब उनकी ग्रीड को पूरी करने के लिए, ग्रीड का मतलब है जितना उन्हें रियली नीड है उससे ज़्यादा दे आर डिज़ायरिंग
It means a desire for more food, money, power than you really need. जितने आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप डिज़ायर कर रहे हो for it can be for anything, for food, money, power, etc. And selfishness means the quality of thinking of your own advantage. अपने फ़ायदे के लिए अपने डिज़ायर के लिए आप किसी को हार्म पहुंचाना. ठीक है. इट मीन्स इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में लोग पुअर और इनोसेंट एनिमल्स को किल कर रहे हैं अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए. ओके. ऑल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सो कॉल्ड रिलीजियस प्रैक्टिसेस. और ये सारी चीज़ एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पार्ट बन गया है. रिलीजियस प्रैक्टिसेस में क्या होते हैं? फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, सेरेमनीज होती हैं. तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट बन गई? रिलीजियस प्रैक्टिसेस का. आपने देखा होगा कुछ रिलीजन्स में क्या होता है. ठीक है. अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों को, इनोसेंट एनिमल्स को हार्म पहुंचाते हैं. ठीक है. मे बी वी आर सेलिब्रेटिंग एनी फेस्टिवल, सेरेमनी, हम सेरेमनी सेलिब्रेट कर रहे हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम ये मानते हैं कि अब वो हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस है. हमारे रिलीजन में यही होता है. ठीक है. एनिमल्स को मारा जाता है. ओके. मारने पे हम बहुत अच्छा फील करते हैं कि हमारे मारा जाता है तो हम मारते हैं, इस ओकेशन पे मारा जाता है. तो ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस है. ओके. तो ये क्या बन गया? रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पार्ट बन गया है. बट हाउ कैन वी गेन रिलीजियस वैल्यूज इफ वी हैव नो मर्सी? लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ कैन वी गेन रिलीजियस वैल्यूज? हम कैसे रिलीजियस वैल्यूज को गेन करेंगे इफ वी डोंट हैव मर्सी, इफ वी डोंट हैव काइंडनेस फॉर एनीवन? अगर हमारे अंदर काइंडनेस ही नहीं है किसी के लिए, देन हाउ वी कैन गेन द रिलीजियस वैल्यूज? हम कैसे रिलीजियस वैल्यूज को गेन करेंगे? All religions preach mercy. सारे religions preach करते हैं mercy. Preach means to keep a talk on religion subject. मतलब हर religion के वाले लोग mercy के बारे में बोलते हैं. एक in every religion, हर religion में. ठीक है. आपने सुना होगा कि everyone talks about a religion subject. अपने religion subject के बारे में बात करते हैं, mercy के बारे में. देखिए हर सबका religion mercy के बारे में बताता है. We should be merciful. We should show kindness to everyone. ठीक है. बट रियली दे मीन, क्या वाकई वो जो रिलीजन प्रैक्टिसेस हमें बताता है, जो रिलीजन हमें प्रीच देता है, ठीक है, रिलीजन सब्जेक्ट के बारे में बताता है, क्या वाकई वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं? एवरी रिलीजन हैव वन थीम. हर रिलीजन में एक ही बात बताई जा रही है, लिव एंड लेट लिव. जियो और जीने दो. नाउ टू एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस mercy, the word mercy, now we are going to read a story, and our story is of Prince Siddhartha. Prince Siddhartha left home and became a hermit. गौतम बुद्धा, जो प्रिंस सिद्धार्था थे, उन्होंने अपना घर छोड़ा और वो हर्मिट बन गए. हर्मिट मीन्स अ पर्सन हु प्रेफर्स टू लिव अलोन. वो इंसान जो अकेला रहना चाहता है विदाउट कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल. बाकी किसी लोगों से कॉन्टेक्ट ना रख के वो अकेला रहता है. ठीक है. गौतम बुद्धा, और उनका नेम था गौतम बुद्धा बन गए वो. ओके. ही विश टू फाइंड अ वे टू रिमूव सफरिंग फ्रॉम द वर्ल्ड. और वो चाहते थे कि वो कैसे रास्ता निकालें, क्या करें कि वो इस दुनिया से सारी सफरिंग, सारी प्रॉब्लम्स को जो एवरीवन इज फेसिंग, उसे रिमूव करने में हेल्प कर पाएँ. फॉर सम टाइम ही लिव्ड एट रत्नागिरी ऑन अ माउंटेन ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ राजागरिया. अब क्या हुआ? शुरू में वो क्या कहे? फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वो रत्नागिरी, ही लिव्ड एट रत्नागिरी, रत्नागिरी में रहे. रत्नागिरी कहाँ था? ऑन द माउंटेन ऑफ आउटस्कर्ट ऑफ राजागरिया. वो माउंटेन पे था. राजागरिया जो प्लेस है उसके आउटस्कर्ट में था. आउटस्कर्ट का मतलब है वो पार्ट टाउन का, सिटी का, जो आपके सेंटर से दूर हो. ठीक है. यानी कि राजागरिया जो जगह, राजागरिया जो एक प्लेस है, उस प्लेस के फार्टर्स, उसके दूर एक जगह थी, आउटर एरिया में एक जगह थी, आउटस्कर्ट. ठीक है. उस वहाँ के माउंटेन
पे जाके वो रहे, ठीक है। तो इट मीन फॉर सम टाइम ही लिव्ड एट रत्नागिरी, रत्नागिरी पे रहे। रत्नागिरी क्या था? ऑन अ माउंटेन, रत्नागिरी के माउंटेन ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द राजागढ़िया, राजागढ़िया, ठीक है, कि आउटस्कर्ट पे एक माउंटेन था, ठीक है, रत्नागिरी। ही यूज टू लिव फॉर सम टाइम देयर। एंड राजागढ़िया क्या था? कैपिटल, इट वॉज अ कैपिटल, इट वॉज अ कैपिटल ऑफ मगध, ठीक है। वो क्या था? वो कैपिटल किसका था? कैपिटल था वो मगधा का, ठीक है। मगधा का कैपिटल था क्या? कौन सा कैपिटल था मगधा का? राजागढ़िया, ओके। अब दैट टाइम बिम्बिसारा वॉज द रूलर ऑफ द मगधा। उस टाइम बिम्बिसारा जो था थे वो वहाँ का रूलर था, यानी कि उनका राज चलता था, ओके। वन डे सिद्धार्था saw a man driving a herd of sheep into the city. एक दिन सिद्धार्था ने देखा कि एक मैन हर्ड ऑफ शीप को सिटी में ले जा रहा है। हर्ड ऑफ शीप, हर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ शीप, ग्रुप को बोलते हैं हम हर्ड। तो शीप के ग्रुप को वो सिटी के अंदर लेके जा रहा है। ही नोटिस वन ऑफ द शीप लिम्बिंग। अब वो देखता है कि उसमें से एक शीप लिम्बिंग कर रही है। लिम्बिंग मीन्स, लिम्बिंग उसे कहते हैं बेटा लंगड़ाना, यानी कि टू वॉक विद अ लैपोर्ट, जड़की मूवमेंट। आपने देखा है ना, किसी के अगर चोट लग जाती है तो हम कैसे, व्हेन वी हैव हर्ट इन आवर लेग, हमारे लेग में या फुट में चोट लग जाती है, तो हाउ वी मूव, हम कैसे लंगड़ा के चलते हैं, हॉबल्ड, वी यूज टू हॉबल्ड। तो हॉबल्ड क्या है? लिम्पिंग का सिनोनिम है, ओके। सो क्या होता है? टू वॉक विद डिफिकल्टी एज यू हर्ट योर लेग और फुट, उसे बोलते हैं लिम्पिंग। तो शीप जो थी, शीप के पैर में चोट लग गई थी, जिस की वजह से वो क्या करती, इट वॉज अनेबल फॉर द शीप टू मूव प्रॉपरली, ठीक है, वो लंगड़ा के चल रही थी। He went to the sheep and found that one of its foot was bleeding. वो शीप के पास जाता है और शीप के पास जाने के बाद उसे ये पता चलता है कि शीप का जो फुट है वो ब्लीडिंग, उसमें से खून निकल रहा है, ठीक है, ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है। Poor creature, he said, वो कहता है poor creature, he said, it has hurt its foot against some stone and is wounded. उसका जो पैर था शीप का वो किसी स्टोन से लग गया था और उसे चोट लग गई थी। इट मीन्स it has hurt his foot against some stone and is wounded. He comforted the sheep and wished to carry it on the shoulder. Comforted का मतलब होता है to try to make somebody feel less worried or unhappy. To try to make somebody less feel worried or unhappy. किसी को भी कम अनहैप्पी बनाना, चिंता में बनाना। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि आई कंफर्टेड लिटिल क्राइंग चाइल्ड, मैंने कंफर्ट किया, मैंने उसे कंफर्ट किया, मतलब उसे ऐसे एटमॉस्फेयर दिया कि मतलब ऐसा, मैंने उसे ऐसे प्यार किया, मैंने उसकी हेल्प, उसे ऐसे हेल्प की कि वो आपका क्राइंग चाइल्ड को कंफर्ट महसूस हुआ, यानी कि ही कंफर्टेड चाइल्ड, उसने शीप की दर्द को समझा और उसकी हेल्प करने की सोची। कैसे? बाय कैरिंग इट ऑन हिज शोल्डर, अपने शोल्डर पे कैरी करके, ओके। हु आर यू, वेयर आर यू टेकिंग द शीप। उसके बाद वो उस शेपर्ड से बोलता है, ठीक है, वो जो शीप, वो मैन जो उसे लेके जा रहा था शीप को, उससे बोलता है हु आर यू, आप कौन हो और आप इस शीप को कहाँ लेके जा रहे हो। ही आस्क्स द मैन रिप्लाइड, मैन क्या रिप्लाई करता है? आई एम ए शेपर्ड, मैं शेपर्ड हूँ। शेपर्ड किसे कहते हैं? अ पर्सन हुज जॉब इज टू लुक आफ्टर शीप, गड़िया जिसे बोलते हैं, वो पर्सन जिसकी जॉब होती है कि वो शीप को देखे, ठीक है, ओके। आई रेज शीप फॉर माई लाइवलीहुड, मैं अपनी लाइवलीहुड उसे कहते हैं कि कुछ अर्न करने के लिए। द वे दैट यू अर्न मनी, ठीक है, ये मेरी लाइवलीहुड, इससे मैं अपनी लाइवलीहुड जीता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ। आई एम टेकिंग इट टू शीप टू किंग भिम्पिसारा, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ उसे? एक किंग भिम्पिसारा के पास लेके जा रहा हूँ, ओके। सो इन दिस वीडियो वी हैव done explanation part till here, Bimbisara, and now we will continue this in the next video. Thank you.